میں آپ تمام صحافی حضرات کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اس آج کی جو مشترکہ کانفرنس ہے اس میں ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک سوال گزارش کے طور پر کرتا ہوں۔ آپ کی نظر میں میرے معزز صحافی دوستوں، آپ کی نظر میں کوئی ایک شخص اگر مرا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تو کیونکہ ہماری نظر سے کوئی ایک بھی بندہ بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بیماری کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے آپ کو ہوئی ہے۔ اگر میں اس سوال سے، یہ میرا سوال وقت کے ایکچولی حاکموں سے ہے، لیکن میں وہ سوال آپ دوستوں کے توسط سے، آپ کے تھرو یہ ان سے پوچھ رہا ہوں۔ ہم ڈاکٹروں کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی، ہم نے پہلے بھی یہی پریس کانفرنس آپ لوگوں کی مدد سے پہلے بھی کی تھی کہ WHO کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو بہتر سے بہتر نافذ کیا جائے۔ ہم اس بیماری سے، اس وبا سے ڈرتے نہیں ہیں اور نہ ڈرنا چاہیے، لیکن WHO کا جو پروٹوکول ہے، ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو، جناب عمران خان کو یہ التماس کر رہے ہیں کہ یہ سائنس کی دنیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خدارا یہ جو لاک ڈاؤن کو نرم کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نرم نہیں کر رہے، یہ ایک دروازے کھول رہے ہیں جس سے یہ بیماری، جس سے یہ وبا پھیلے گی، اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یا ہماری اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن یا ہمارے ساتھ یہاں کیس ڈیزیز ایسوسی ایشن والے دوست ہیں، ہم ڈاکٹرز اپنی قوم کے لیے، اپنے پیشنٹس کے لیے وی آر فرینڈ، ہم کسی بھی پریشر میں نہیں آئیں گے،
ہم کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے. یہ ہمارے ضمیر کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ WHO کا جو پروٹوکول ہے اس کے اگینسٹ چلنا ہماری قوم کے لیے یہ فائدے مند ثابت نہیں ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ دوست ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے اس مشترکہ آواز کو ان ایوانوں تک پہنچائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو فائدہ ہو رہا ہے ہماری نظروں میں، یہ بڑے جو ویپاری ہیں، یہ فائدہ ان کو ہی ملے گا یا تو حکومت کو مریضوں کے لیے سہولیات کو زیادہ کرنا ہوگا. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ سلسلہ جو ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی انکشاف کیا ہوا ہے کہ بھائی یہیں کہیں آپ دیکھیں کہ بہت ہی برا حال ہے. مریض بیچارے جو ہے وہ گھومتے چلتے ہیں ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل، دوسری ہاسپٹل سے تیسرے ہاسپٹل، کسی کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. تو میں آپ کے توسط سے ابھی باقاعدہ جو میرے پاس جو گزارشات ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے میں رکھتا ہوں. آج کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں شریک ہونے پر میں آپ دوستوں کا مشکور ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اصولی طور پر آپ سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہوا ہے، جبکہ پی اے میں اور دیگر ہماری تنظیمیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ سخت لاک ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے عوامی آگاہی کی مہم پر زور دے رہی ہے. تاکہ کورونا وائرس کا کم سے کم پھیلاؤ ہو جائے اور حکومت جو ہے وہ طبی سہولیات کو زیادہ مؤثر کرنے میں کرنے کے انتظامات جو ہے وہ عمل میں لائے. اس وقت کراچی میں 5 سرکاری ہسپتالوں میں کورونا کے لیے مخصوص کیے گئے بستروں کی تعداد 63 ہے. آپ کو جو بھی وہ نمبر بتائیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن پی ایم اے کے علم میں یہی بات ہے کہ کورونا ڈیڈیکیٹڈ بیڈز وہ 63 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. تو جب یہی ہمارا یہ حال ہوگا اور کورونا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کورونا کے پیشنٹس کا تعداد بڑھے گا اگر یہ صورتحال رہی. تو
दूसरे जो शहर हैं उनका हाल क्या होगा, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपने वैसे भी देखा होगा कि ये जो लॉकडाउन हम लॉकडाउन कहते हैं, यहीं आप देखो, सब्जी मार्केट में देखो, नागा की ऑफिस के बाहर देखो, कहीं कोई भी समझो कि कोई चीज तकसीम कर रहे हैं कोई लोग, वहां भी आप देखो जुलूस लगे हुए हैं। तो ये अभी हुकूमत का फर्ज है कि इन चीजों पर जब आप नरमी कर रहे हैं, वैसे भी जो लॉकडाउन है वो उसूली तौर पर वो लॉकडाउन नहीं है जिसको हम लॉकडाउन कहते हैं, जो हमारे नजर में वो लॉकडाउन नहीं है, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। तो अगर नरमी होगी तो जायद है, आप समझिए कि क्या होगा। टाइम कम होता है ना, इसको जल्दी कर ले, टाइम कम है, चले जाएंगे। इसी हिसाब से हम हुकूमत को मशवरा देते हैं कि WHO का जो प्रोटोकॉल है उस पर अमल किया जाए। मैं इसको आगे कर लूँ, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ, अभी कर मेरे ख्याल में इसको जो है ये मैं कर लेता हूँ। ये आप कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, सोनिया साहब की एक नेचर है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता और ठहर के बाद बोलते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग सवाल जवाब कर लें, उसमें भी कर लें। जैसे कि टोनी साहब ने बता दिया है कि एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ मकसद यही था कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। उसके बाद की सूरत हाल बहुत ही हम समझते हैं कि ख़राब होगी। उसकी वजह यह है कि जब लॉकडाउन किया गया था उस पर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद भी नहीं किया गया था, तो केसेस में इजाफा हो रहा था। अब जब केसेस में इजाफा बहुत तेजी से और हो रहा है, तो लॉकडाउन को रिलीज किया जा रहा है, जो कि हमें तशवीश है, हम तमाम लोगों को तशवीश है। हमने कल भी एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की हैं, सोहेल बैठे हुए हैं, साद हैं और ये मिसबा साहब हैं, सब हम लोगों ने मिलकर, हमारे PMA वालों ने भी सब यही की, और हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, तो हमें तशवीश है तमाम लोगों को कि खुदा ना खास्ता ये होता है तो फिर क्या होगा। हमारी जो एक जॉइंटली प्रपोज है सरकार को कि वो करे, एक तो नंबर एक ये है कि आपके पास अगर सबके पास हो गया है, मिल गया है ये प्रेस रिलीज, तो उसमें मैंने नंबर 1 पे यही है कि देखें, जो दुनिया में यही होता है कि जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो आप लॉकडाउन बरकरार रखते हैं, जब नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं तो आप लॉकडाउन को रिलैक्स करना शुरू करते हैं, स्टेप वाइज, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जब केसेस बढ़ रहे हैं तो आपने लॉकडाउन को कम कर दिया है, विच इज वेरी वेरी सीरियस। और ये फिर हम नहीं कह रहे या दूसरे ममालिक नहीं कह रहे, WHO की गाइडलाइन है, और WHO ने तमाम लोगों से ये कहा है कि जब आपका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए तो आप स्टेप वाइज इसको लॉकडाउन करें। एक तो हमारी तशवीश ये थी और हमारी प्रपोज ये था, अगर आप लॉकडाउन कर दिए आपने तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो आपने SOPs बनाई है, एक तो ये कि हमें थोड़ा सा इसमें हमें अफसोस है कि ये जो ऐलान हुआ है कि हुकूमत ने सारी जिम्मेदारी अवाम पे डाल दी है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि अब अवाम जिम्मेदार है। लेकिन हमारे यहाँ अवाम जितने भी कानून है, कानून हमारे यहाँ बेतहाशा है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, उस पर अमल दरामद नहीं होता है। तो क्या हमारी अवाम इसको अमल दरामद कर सकेगी SOPs पे? यकीनन इसमें प्रॉब्लम होगा। हमने पिछले दिनों भी देखा, जो बाजार खुले हुए हैं, जो बैंक के बाहर रश था, जो लोग राशन जमा कर रहे थे और जो राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उसमें किस तरह के हालात थे सबके सामने। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत इसको स्ट्रिक्टली अपनी जिम्मेदारी समझ के
इसको SOPs को पे पाबंदी कराए, SOPs को फॉलो कराए, ताकि ये हमारे यहाँ जो लोगों का प्रॉब्लम है वो कम से कम हो सके। तो एक ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, ये तीसरी बात ये है कि आपने देखा पिछले दिनों हमारा एक साथी हमसे बिछड़ा, डॉक्टर फुरकान। सबको आपके नॉलेज में है कि उसकी मौत किस तरह से हुई। इसलिए कि अस्पताल जब आदमी जाता है, और डॉक्टर के साथ जब हुआ तो आप समझ लें क्या होगा। जब अस्पताल जाता है आदमी तो उसको एक जुमला कहा जाता है कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, आप खुदा हाफिज। होना ये चाहिए कि इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए। जब हॉस्पिटल के अंदर मरीज जाता है तो उसको बताया जाए कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, हम यहां आपको बात करते हैं, आप फला हॉस्पिटल ए में अगर खड़ा है तो उसको हॉस्पिटल बी सी जहां बेड खाली है वहां पर वो चला जाए। तो मरीज एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह में बीच में इंतकाल कर जाता है। ये नहीं होना चाहिए। एक हेल्पलाइन, एक डैशबोर्ड, एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि एम्बुलेंस वाले को भी पता हो कि मुझे इस मरीज को कहां लेके जाना है। वो मरीज रिसीव करे और उसके साथ साथ अपने आप को इन्फॉर्म करे कि मेरे पास ये मरीज है, हम सेंट्रलाइज कहां पे जाना है। तो एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्योंकि हमारे यहाँ अब हमें लग रहा है कि ये पेशेंट का फ्लो जो है वो बढ़ेगा, और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो अभी मुझे पता लगा कि 1771 पेशेंट सिंध में सिर्फ आ चुके हैं इस वक्त, जो कि कल 1500 समथिंग थे। तो सिर्फ सिंध की का फिगर ये है। अब आप समझ लें कि जो डॉक्टर हजरात ने जितने भी पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तशवीश का इजहार किया था, तो उन्होंने यही खदशा जाहिर किया था, और अभी भी हम समझते हैं कि वो ये चीजें हैं। और अगर ये चीजें करनी ही है तो खुदारा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा हेल्थ का निजाम है, हम तो कोरोना आने से पहले से ही रो रहे थे कि हमारे पास पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से हम नहीं निपट पा रहे हैं, हमारे पास मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों से हम नहीं निपट पा रहे हैं। हम कहते रहे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंटिव साइड पे पैसे लगाइए, क्यूरेटिव पे मत लगाइए। आप मच्छर को खत्म करें, आप पानी को, साफ पानी प्रोवाइड करें, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कोरोना जब से आया है, वो ये तमाम बीमारियां जो नॉन कोरोना पेशेंट है उनका क्या असर हो रहा है, आप उसके बारे में सोचिए। उसको कोई नहीं सोच रहा है, उसको भी मैनेज करने की जरूरत है। इसी तरह से हम समझते हैं कि अगर जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको अस्पताल के अंदर बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको वेंटिलेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अभी आपको मैं बताऊं कि हमारे पास 63, टीकू साहब बैठे हुए, इन्होंने सारा कैलकुलेट किया हुआ है, 63 वेंटिलेटर इस वक्त सिर्फ कराची में है। इसी तरह से मेरी 10 मिनट पहले लियाकत शेरवानी साहब से बात हुई है, जो कि बलूचिस्तान के स्पोक्समैन हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। वो गवर्नमेंट में रह के परेशान है, और वो बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ 25-40 वो है, वो पता नहीं, वो एक बात ये भी कह रहे थे कि 20 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर है। लेकिन खैर डिस्पोजेबल वाला तो कोई काम नहीं होता है, लेकिन जो वैसे इनके पास है 60 हैं, 60 में से 20 निकाल दें तो सिर्फ 40 आपके पास पूरे बलूचिस्तान में 40 वेंटिलेटर है। क्या हम इस तरह से हम मरीजों को संभाल सकेंगे? अगर खुदा न खास्ता अब तक अभी तक जितनी कंडीशन है, हम सही बात है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर लें, ये ठीक है, लेकिन सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करके हम बैठ नहीं सकते। हमें अगर आपने लॉकडाउन रिलीज कर दिया तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, तमाम फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स की बढ़ानी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ा मसला हमारे सामने आ सकता है। इसके बाद आखिर में जो एक बात है, जो हम हमेशा अपनी बात आखिर में करते हैं, वो हम अपने साथियों की बात करते हैं। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, आप कहते हैं कि हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, आप कहते हैं कि हमारी फौजी हैं, तो आपने निहत्ते लोगों को भेज दिया है। इस वक्त 800 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बीमार है, आइसोलेशन में है। अगर यही काम चलता रहा तो आप बताइए कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, अस्पताल जा रहे हैं, और अस्पताल में जो ठीक करने वाले लोग हैं वो घर जा रहे हैं अपनी बीमारी के लिए। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स परमानेंट बेसिस पे सप्लाई करने की जरूरत है। दे दिया वाला काम वो नहीं है। इसके बाद तमाम डॉक्टरों की जो हम बात कर रहे हैं कि उनको वो करना है, क्या कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट के साथ साथ उनको जो अलाउंसेस हैं जो आपने काटे हैं तनख्वाहों में, उसकी हमने 12 हमारी मुलाकात होती रही है सिंध गवर्नमेंट के तमाम, इवन के बिलावल
भुट्टो जरदारी से भी हुई है, उन्होंने वादा किया, इस पे इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी उन्होंने यही कहा है कि जब तनख्वाह मिलेगी तो जो कटौती हुई थी वो वापस हो जाएगा, मिल के मिलेगा और एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। लेकिन हमें अफसोस एक बात का है कि ना फेडरल गवर्नमेंट ना सूबाई गवर्नमेंट, हमारे 10 साथी इंतकाल कर चुके हैं, किसी ने भी उनकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा है, ना ही किसी ने फोन किया है कि उनकी खैरियत पूछी। शायद किसी ने किया हो तो हमें नहीं पता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से किसी ने भी नहीं किया। मैं समझता हूं कि मेरी दरखास्त होगी कि उनके घर वालों के बारे में मालूम करें, उनके फ्यूचर के बारे में मालूम करें कि उनकी फैमिली का क्या हाल है, और उनके लिए एक पैकेज ऐलान करें ताकि उनकी फैमिली का जिंदगी भर के लिए कुछ अलाउंस या कुछ पैकेज होना चाहिए। इसी तरह से मैंने कहा कि ये डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि वो खुद को भी बचा सकें और दूसरों को, बीमार जो मरीज आ रहा है उसको भी ना लगाएं। अच्छा, ऐसे बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात को यहां खत्म करूं। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी गुफ्तगू मिसबा साहब भी करें, थोड़ी सी साथ भी करें और सुहेल भी करें, लेकिन बहुत शॉर्ट करें। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोगों से आप अपनी जो है वो सवालात जो आपके जहनों में वो कर लें। मेरे ख्याल में सुहेल करीब है, कॉर्डलेस दे दो भाई। आसिफ आपको थोड़ा यहाँ आना, अच्छा जोर से बोल लेता हूँ। आजा आज मैं सिर्फ एक पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहूँगा, वो है बेड स्ट्रेंथ कि हमारे पास कोरोना को डील करने के लिए बेड्स कितने अवेलेबल हैं। क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, चेस्ट फिजिशियन हूँ और इस वक्त कोरोना के पेशेंट को डील कर रहा हूँ एक्टिवली अपने हॉस्पिटल में। तो 3 तरह के बेड आप समझ लीजिए अच्छी तरह। एक वो होते हैं, बल्कि 3 तरह के पेशेंट समझ लीजिए कोरोना। एक वो है जिनको मामूली सिम्टम्स हैं, वो घर पे रह सकते हैं, आइसोलेशन कह लें इसे। ये आइसोलेशन जब कोई पेशेंट कहे कि मेरे घर में 2 कमरे और 20 अफराद है, मेरे लिए आइसोलेशन मुमकिन ही नहीं, तो फिर उस पेशेंट को गवर्नमेंट के जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल तो नहीं कहेंगे, क्वारंटीन बेड्स कह लें, जैसे एक्सपो सेंटर में या गडाफ में, इसलिए उनको वहां हाउस किया जाता है। ये सीरियस पेशेंट्स नहीं होते, लेकिन इनके एक क्योंकि बड़ी तादाद होती है बेड की, इसलिए पूल में शामिल होकर लगते हैं। जो सैकड़ों बेड हैं, डॉक्टर क्यों परेशान होते हैं। तो पहला केस, ज्यादातर पेशेंट्स लेस सीरियस उसके हैं। दूसरे वो पेशेंट होते हैं जिनको कुछ सिम्टम्स ऐसी होती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनमें अक्सर को एडमिशन की जरूरत होती है। ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट के पेशेंट्स होते हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको HDU कहा जाता है, ये बिल्कुल ICU के बेड के बराबर होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि जिस पेशेंट को अभी हमने ऑक्सीजन दी है और उसकी ऑक्सीजन तकरीबन बस बराबर चल रही है, ये कब कोलैप्स कर जाएगा, उसको ICU में जाना पड़ेगा। तो HDU बेड दूसरी कैटेगरी की, और तीसरी कैटेगरी ICU बेड। ICU बेड वो होते हैं जिनमें वेंटिलेटर होते हैं। तो आइसोलेशन बेड्स को अगर आप बहुत हजारों में दिखा देंगे तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जिससे शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वो इंटेंसिव केयर बेड्स की है। अगर से कि हमें अल्लाह का शुक्र है तो दुनिया भर की स्टैटिस्टिक्स से यही पता चला है कि बहुत कम पेशेंट्स को ICU में जाने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह का शुक्र है। ये भी हम डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके पेशेंट को वेंटिलेटर पर ना डाला जाए, क्योंकि वेंटिलेटर पे डालने के बाद कॉम्प्लिकेशन में इजाफा होता रहता है। मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, टीकू सुल्तान साहब, मेरा ख्याल है बाकी मैनेजमेंट तो मैं इनकी इजाजत से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, इस पे रोशनी डाल लेंगे, लेकिन चूंकि मैं भी इसको डील करता हूँ, तो इंटेंसिव केयर के पेशेंट वेंटिलेटेड पेशेंट्स को हम कोशिश करते हैं कम से कम उसको नौबत आए बिल्कुल ही तमाम चीजें जवाब दे जाए तब डालते हैं। वेंटिलेटेड पेशेंट्स, वेंटिलेटर की तादाद हार्डली 70 के करीब है, 70 या 80 के करीब। ये हमारे पास तकरीबन भरे रहते हैं। शायद ये नहीं हो कहिए कि एक पेशेंट अगर कोई ठीक हो के एक्सट्यूबेट हो और या डिस्चार्ज हो तो उसके बाद फिर एक बेड डलता है 3 मरीज की। मैं अपने अस्पताल की बात बता रहा हूँ। मैं कल ER में गया इमरजेंसी रूम में, तो 2 कोविड के पेशेंट डायग्नोज बैठे थे 24 घंटे पहले से, क्योंकि उनके लिए बेड तलाश किया जा रहा था शहर में। हमारे हॉस्पिटल के जितने ICU वेंटिलेटर थे सारे फुल थे। तो ये जो ICU के क्रिटिकल केयर के पेशेंट, हम इसका रोना हो रहे हैं। हम इस बात का भी रोना हो रहे हैं कि आप हमें हथियार फराहम कर दीजिए
اور کیسز بڑھانے کی طرف سے آپ نے جو اعلان کر دیا ہے وہ اب تو آپ نے کر دیا ہے. اب ہمیں کوئی ہتھیار دے دیجیے, ہمیں عملہ دے دیجیے, کیونکہ عملے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اس وقت مثال کے طور پہ کوئی گورنمنٹ کہے کہ ہم 500 وینٹیلیٹر لے آتے ہیں, کہیں سے امپورٹ کر لیتے ہیں, اور یہ آپ کی خدمت کے لیے آ جائے. ایک وینٹیلیٹر پہ اگین میں چاہوں گا ٹیپو صاحب اس پہ بات کریں کہ کتنے پیرامیڈک اسٹاف چاہیے ہوتا ہے, نرسنگ کتنا ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے, اور پھر اس کی شفٹ کے حوالے سے کتنے ٹرن اوور چاہیے ہوتا ہے. وہ ہمارے پاس عمل نہیں, وہ جتنے بھی ہیں وہ اس میں کر رہے ہیں. ایک اور جو آپ کی بات کروں گا, ایک اور جو فگر میں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سندھ میں مثال کے طور پہ ایک کلیم آیا تھا کہ 800 یا 900 وینٹیلیٹر موجود ہیں. بالکل ہو سکتا ہے ہوں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم, لیکن ایکچولی اس وقت اگر 70 ہم کہہ رہے ہیں 80 کورونا کے پیشنٹس کے لیے وینٹیلیٹر موجود ہیں کراچی کی بات کریں, تو اس کے علاوہ اور بھی تو پیشنٹس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. ایک مائوکارڈل ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آتا ہے, ایک فالج کا پیشنٹ آتا ہے, ایک ڈائبٹک کیٹوسیڈوسس کا پیشنٹ آتا ہے, ایک سیپسس کا پیشنٹ آتا ہے. وہ آنے بند تو نہیں ہوئے, وہ بیماریاں ختم تو نہیں ہوئی. اگر ہم نے سارے وینٹیلیٹر کو کورونا کا ڈکلیئر کر دیا تو باقی پیشنٹ کہاں وینٹیلیٹر میں ڈالے جائیں. تو اس فگرز کو ذرا جب بھی ہم اینالائز کریں, پورشن میں رکھ کے کریں, تب ہماری سمجھ میں آئے گا. وی آر اسٹل ویری ڈیفیشنٹ ان کووڈ ریلیٹڈ ایونٹس. بہت شکریہ سہیل. میں اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو ایکسپو سینٹر کی بات ہوئی ہے وہاں پہ 12 بیڈ وہاں پہ اویلیبل ہے, اور 1200 بیڈ اویلیبل ہے, جس میں سے ابھی 350 بیڈ جو ہے وہ آکوپائڈ ہے. ابھی بہت سارے, لیکن وہاں صرف پرائمری چیزیں جو کیا کہتے ہیں ماڈریٹ, وہ صرف آئسولیشن کے مائنر پیشنٹ ہیں جن کو سمٹم, جن کو کورونا پازیٹیو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, آئی سی یو نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہے میں اسی کے ساتھ بتاتا چلوں, جو ہوم آئسولیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر لوگوں کو ایک پرابلم ہو رہا ہے جو کہ فرقان کے ساتھ, ڈاکٹر فرقان کے ساتھ ہو گیا, کہ اسٹگما ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی باہر پولیس آئے گی اور ان کے بدنامی ہوگی, اس کو آپ کو ختم کرنا ہے. وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. لوگوں سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ, اور پولیس گاڑی کا جانا وہاں پہ بالکل غلط ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. میں چونکہ ہمارے کچھ دوست, ہمارے صحافی بھائی بھی اور کچھ ہمارے ڈاکٹرز بھی اس سچویشن میں بہت اپنے آپ کو احتیاط کر رہے ہیں, اور وہ اس ہجوم سے بچنا چاہتے ہیں. 2-3 مجھے پریس والوں نے بھی منع کیا ہے, کچھ خاتون ہیں وہ انہوں نے منع کیا کہ آپ مجھے بتا دیجئے گا, لیکن اس ہجوم پہ میں نہیں آ سکتی, مجھے پرابلم ہے. میرے ساتھ انفیکشس ڈیزیز آف پاکستان کی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پلیز اپنی بات یہاں پہ پہنچا دیں. ڈاکٹر نسیم گو ہیڈ, آپ کچھ بول سکتی ہیں بہت شارٹلی, تو پلیز بولیے. آ رہی ہے اسپیکر آن. جو زیادہ ماڈریٹ سیویئر ڈیزیز میں ہوں گے یقیناً ان کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا, اور ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں ہی نہیں کہ ان کے لیے اتنے بیڈس ہوں, نہ اتنے ہیلتھ کیئر ورکرز ہوں گے, نہ اتنے وینٹیلیٹرز ہیں. تو جب یہ نوبت آئے گی تو اس میں عوام بھی بہت ہی ناراض ہوگی, اٹ میں لیڈ ٹو وائلنس. تو میں خالی یہ اس چیز سے بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. اس کے لیے لاک ڈاؤن کو نرمی کرنے سے ٹھیک ہے, تو ہم تو کہیں گے کہ بھائی اپنے SOPs فالو کرو, کہ باہر جاتے وقت ماسک پہنا کرو, ہاتھ دھویا کرو, یہ سب کرو. لیکن ہمارے عوام بھی اتنی ڈسپلن ہے ہی نہیں کہ یہ انسٹرکشن کو فالو کریں گے. اب تک تو لوگوں میں یہ فیلنگ ہے کہ یہ تو ایک معمولی چیز ہے فلو کی طرح. لیکن فلو بھی معمولی نہیں ہوتا, لیکن اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کورونا کی, جو خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, ایز اپوز ٹو انفلوئنزا جو بھی بہت لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اس میں بھی افراد
بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کی بات لوگوں سمجھ گئے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اس میں میں آپ درخواست کروں گا کیونکہ شارٹ ہے، آپ کی بات سننا چاہ رہا ہوں، آپ ڈاکٹر مصباح پلیز گو ہیڈ سر۔ کچھ تقریباً تمام ہمارے ساتھیوں کی ایک ہی بات ہے اور وہ بات ڈاکٹر مصباح کریں گے، وہ بھی سنیے۔ بیماری ایسی ہے کہ اس کا نہ کوئی علاج ہے، نہ اس کا کوئی ویکسین ابھی تک آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا صرف ایک ثابت شدہ طریقہ ہے بچاؤ کا، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کیا جائے، اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیا جائے، لوگوں سے ملنے جلنے سے اجتناب کیا جائے، اور جو ذاتی صفائی کی احتیاطی تدابیر لی ہیں ان پر کیا جائے۔ لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ حکومت کی طرف سے بڑے مکس سگنل آئے تو لوگوں میں اس بیماری کے خطرات کی آگاہی برابر نہیں ہو سکتی۔ لوگ ابھی تک بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھنے سے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوئی ہے مختلف ممالک کے اندر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے بچایا، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب یہ مشکل آئے اس کے بعد حکومت کے احتیاط کا آپ سے کہیں۔ تو میری لوگوں سے اپیل ہے، عام طور پہ شہریوں سے اپیل ہے جو اپنے گھروں میں اس وقت ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی اللہ کے واسطے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دیکھیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اگر یہ آپ کو لگ گئی یا آپ کے کسی بچے کو جو باہر سے گھر میں آیا لگ گئے تو آپ کے سارے گھر کو یہ متاثر کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، اپنے والدین کی اور اپنے بزرگوں کی حفاظت کیجیے، اسی لیے کہ اگر آپ کے والدین یا آپ کے بزرگ اس بیماری سے متاثر ہوئے تو پھر ان کے لیے حالات بہت خراب ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جبکہ بیماری کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ WHO کی جو نئی رہنمائی آئی ہے اس میں پاکستان 10 ممالک میں شامل ہو گئے ہیں جہاں پر ایک دن میں تقریباً 2000 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پرسوں کی میں بات کر رہا ہوں، آج تو شاید اور بھی زیادہ ہو۔ یہ وقت تھا کہ جب لاک ڈاؤن کو اور زیادہ کر دیا جاتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی کیا کیا ترجیحات ہیں انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن میں یہ عوام سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حکومت کی باتوں کو چھوڑیں، آپ خود اپنے طور پر اپنا احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصباح۔ میں آخر میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم کا مسئلہ ہے، مجھے پتا ہے ڈائریکٹ لنک ہے۔ مصباح، یہ ڈاکٹر سعد خالد نیاز، آپ میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو ایک اور سلسلہ ہوا ہے کہ SOPs جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے گا، اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا؟ کیونکہ جو ابھی تک امپلیمنٹیشن ہوئی ہے پورے پاکستان میں وہ کہیں پہ صحیح نہیں ہو رہی، اور یہ SOPs بنانا میرے حساب سے شاید آسان کام ہے، لیکن اصل کام کو SOPs کو امپلیمنٹ کرنا، اور یہ کام عوام کا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرا کام نہیں ہے، کہ حکومت کا کام ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو۔ تو آئی تھنک یہ ایک چیز جو ہمیں سمجھ میں آئے گی اس کے SOPs ہم بنا دیں گے اور اس کو عوام فالو کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عوام اس چیز کو کر سکے گی، اور یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے کرے تاکہ وہ SOPs اگر بنائیں تو فالو تو ہو، کہیں پہ بھی SOPs فالو نہیں ہو رہے، یہ بڑا ضروری چیز ہے۔ ایک چیز میں ایڈ کروں کہ 2 ہفتے پہلے جب ہم نے پریس کانفرنس کی تھی تو ہمارے نمبر 10,000 سے کم تھے، آج ہمارے نمبر 27,000 3 گنا ہو گئے 2 ہفتے میں۔ ڈیتھ کوئی 100 کچھ لوگوں کی ہوئی تھی اور آج 600 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو جو پوائنٹ یہاں پہ دیا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اسی طرح ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں مسئلہ ہے، اور وہ جو مسئلہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں آپ ضرور لاک ڈاؤن میں اگر پلیز کرنا سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو خدا لوگوں کو پلیز یہ بھی بتائیں کہ آپ کی جو میڈیکل فیسلٹیز جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں اور جو پیپرز پہ ہیں وہ اور ریالٹی تھوڑی مختلف ہے، آپ کو جا کے ہر جگہ خود دیکھنا پڑے گا، اور اگر اس کے لیے آپ کو یہاں پہ لوگوں کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ سب اپنی طرف سے آپ کو گورنمنٹ کو چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل ہو ہر طرح سے ہیلپ کرنے کو تیار ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں شریف آسمانی صاحب کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں، سر 2 لائن بول دیجیے گا کیونکہ لائیو ہے تو زیادہ ٹائم نہیں۔ 2-3 باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو آن کر دیں۔ پہلی بات
करीब पहली बात तो ये है कि ये गलत वक्त था जिसमें कि जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उस वक्त लॉकडाउन को रिलीज करना ये सही टाइम नहीं करेगी, क्योंकि अब फैसला हो चुका है और क्योंकि अब ये आवाम के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इसको भी फॉलो करें। तो मेरा मसला आवाम को सिर्फ ये भी होगा कि खुदा के वास्ते मास्क तो जरूर पहने, इसलिए कि मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो आप इन्फेक्शन जिस तेजी से लेंगे और इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे हमारे दूसरे साथियों ने बताया। नंबर 2 बात यह है कि टेस्टिंग बार बार होनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि हमारे सवाल कौन कर रहा है? कराची में जो 15,000 आप कर रहे हैं? जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि वो अपनी क्लिनिक खोल सकें और ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुई है। तीसरी बात मैं ताजिर हजरात से कहूँगा कि हमें आपकी परेशानी को आई है, हम समझते हैं कि ये बड़ा गलत टाइम है जिसमें कि सारा लॉकडाउन हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ये जिंदगियों का मामला है और 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते आप भी सब्र कर लें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हामिद आप सवाल करना चाह रहे हैं प्लीज। एक मिनट, सॉरी, मैं जैसे सर ने कहा कि जैसे अवाम को डॉक्टर साहब ने भी हाथ जोड़कर अर्ज किया कि एहतियात करें और ये मास्क पहने, स्पेस रखें, ये भी प्रोटोकॉल है WHO का। आप तो जानते हैं जैसे वियतनाम है, ताइवान है, नेपाल है, वहाँ भी केसेस हुए कोरोना के, लेकिन वहाँ एक भी डेथ नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? उसने ये SOPs पर, उसने इस प्रोटोकॉल पर अमल किया कि उन्होंने मास्क लाजमी तौर पर पहना और जब भी घर से निकले तो उन्होंने एक स्पेस जो है वो उसको कायम रखा। और इसी वजह से इन तीनों ममालिक में, हो सकते हैं और भी हो, तो इन तीनों ममालिक में एक भी डेथ कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। नेपाल जैसा छोटा मुल्क, ताइवान और वियतनाम। अभी ठीक है सर, थैंक यू। हामिद साहब प्लीज। मैं ये जानना चाह रहा था, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और उनकी रवैया भी आपके सामने आप लोग बताते होती रही। एक तो डॉक्टर सर को PPE कराने हम देते रहे, दूसरी चीज गवर्नमेंट की जाने से फील किया जा रहा है कि आदाबशुमार तक वो महदूद हो गया कि इतने केसेस हो गए, इतने लोग मर गए और उसकी वजह से जो खौफ मुसलसल बढ़ता है, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम देखने में नहीं, ना डॉक्टरों की तरफ जिस तरह उन्होंने पहले हुकूमती तर्जुमान बनकर हुकूमत की नुमाइंदगी की कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, विभाग की और थी, तो आप लोग इसमें भी आगे बढ़ के हुकूमत में क्यों ये नहीं करते कि जो आइसोलेशन वार्ड जो क्वारंटाइन है वहाँ का जो हाल है बताने वाला नहीं, पानी वहाँ पर मौजूद नहीं है, ज़्यादा रमजान का महीने जो लोगों को मुश्किलात आती है इसीलिए। दूसरी जो कोरोना की मैयत होती है ये सामने आ गई कि उससे कोई वायरस नहीं फैल सकता, जो हुकूमत जो हवाले कर देती है उसकी जिस तरह तस्कीन होती है, जो लोगों को जो तस्लीम किया जाता है या जो डेड बॉडी की जो तस्लीम होती है, जो लोग जो आपसे दीदार करना चाहते हैं इन पर जो आप लोग अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। देखिए उसमें मैं बता दूंगा, इसका जवाब आप दे दें। सुहैल, तस्वीर के ऊपर बहुत कुछ हुआ हुआ काम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम सब लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है। उससे पहले जो आपने बताया ना क्वारंटीन और उसका, मैं अगर तो मैं बोल देता हूँ ऑसिलेशन का। लेकिन 22 जनवरी को मैं बार बार कह रहा हूँ, 22 जनवरी 2020 को हमने सब बता दिया था कि 6 लोग जब वुहान सिटी में इंतकाल कर गए थे और 300 मरीज थे उस वक्त, कि आप क्वारंटाइन बनाए, आइसोलेशन बनाए। लेकिन जिस तरह क्वारंटाइन बना वो क्वारंटाइन नहीं था, बल्कि वो नजरी थी क्वारंटाइन की जो तापतान में बना। उसके बाद वो सारा जगह फैल गया। अब सूरत हाल ये है कि जो क्वारंटाइन के जो सिचुएशन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्हाट्सएप में भी तस्वीरें भी आ रही हैं, नोटिस भी आ रहे हैं। बात सारी है कि हम बारहा हर चीज को कर रहे हैं, हम मेन फोकस ये कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि बताने के लिए कि आप सोच नहीं सकते। हम तो बात करना चाहते भी टेलीविजन पे, उनके पास भी टाइम नहीं होता है तो हमें कट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हर चीज एम, जो हमारा एम है, हमारा एम यही है कि खुदारा आप इसको लॉकडाउन को उस वक्त कम ना करें जिस वक्त के नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हों। और नंबर ऑफ केसेस जो बताए जाते हैं वो नंबर ऑफ केसेस एग्जैक्टली नहीं है कि इतने मरीज हमें पॉजिटिव हुए। भाई आपने कितने टेस्ट किए हैं अभी तक? अभी तक 2.5 लाख टेस्ट हुए हैं तकरीबन, या 2,60,000 हो गए होंगे, कल तक 2.5 लाख थे। लेकिन जो आप बताते हैं हुकूमत के 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन,
تو जो बाकी 4 करोड़ और 98 और 97 लाख जो लोग हैं वो किधर हैं? उनको क्या पता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रिवेंटिव साइड पे काम करें, आप इसको रोकें, SOPs बना रहे हैं तो उस पर अमल करें। जो अभी साथ ने भी कहा है, जो अस्पताल आपने बढ़ा दिए तो अस्पताल में वेंटिलेटर बढ़ाए, जो सुहेल कह रहे हैं कि आप बेड बढ़ाएं, तो ये सारी चीजें हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपने बढ़ा दिए तो तैयारी करें, क्योंकि बहुत आगे खराब वक्त आने वाला है। और उससे ज्यादा पैरामेडिक्स, नर्सेज और डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करें। इलाज आके कोई मिनिस्टर ने नहीं करना है, या किसी सदर साहब ने नहीं करना है, ना वजीर आजम साहब ने करना है, ना किसी ब्यूरोक्रेट्स ने करना है। इलाज डॉक्टर्स ने करना है और पैरामेडिक्स ने उसको देखना है। तो फ्रंट लाइन पे जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको तहसीन प्रैक्टिकली किया जाए, जैसे हम बाहर के मुल्कों में देख रहे होते हैं। तो उनको आप इंकरेज करें, बजाय ये कि आप उनके बारे में बात करें। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, हम मानते हैं इस चीजों को, लेकिन हर आदमी बहुत सारी बातें एक वक्त पे नहीं कर पाते। तो आप अगर कोई और सवाल है तो हम करते हैं, लेकिन ये जरूरी बात है कि क्वारंटाइन की हालत सही करनी है, ICU की हालत सही करनी चाहिए। और जो होम आइसोलेशन में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि होम आइसोलेशन तो कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए एक बहुत बड़ा हमारा डॉक्टरों का एक नेटवर्क है जिसको आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। वो नेटवर्क है जनरल प्रैक्टिशनर का, फैमिली फिजिशियन का, आपने उसको छोड़ा हुआ है। वो डेली बेसिस वाले हैं, सुबह शाम अपनी क्लिनिक करते हैं तो वो खाते हैं, लेकिन वो घर बैठ गए, डर है उनको प्रोटेक्टिव PMA वाले, PIMA वाले प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पेश कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दे और उनसे आइसोलेशन, वो गली महल्ले में होते हैं, वो घरों घर जाके आप मरीज को देखेंगे भी, आपको डाटा भी बताएंगे, सूरत हाल भी बताएंगे, उनके प्रोग्रेस भी बताएंगे। तो सिस्टम आपको सही करना पड़ेगा, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से आप ये देखें कि 15,000 डॉक्टर जो है वो MBBS करने के बाद पिछले 3-4 महीने से घर बैठा हुआ, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अब वो PMDC का झगड़ा है या PMDC का जो प्रॉब्लम है, एक अलग इश्यू है कि उसकी वजह से वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, वरना हम उसको कोविड की ट्रीटमेंट में या कोविड के मैनेजमेंट में उनको आगे ला सकते थे। लंदन के अंदर जो GMC है, वहां जो फाइनल ईयर के जो लड़के हैं उनको उन्होंने रजिस्टर कर दिया और कहा भाई आ जाओ मैदान में काम करें आप लोग आके, और हम लोग जो डॉक्टर बने हुए हैं उनको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आप पूछिए, एक मिनट पहले आप कहें। अरे सॉरी, डेड बॉडी पे सुहेल साहब बता दें। जब कोई कोरोना का पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका वायरस दूसरे जिंदा लोगों को ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल क्लियर मेडिकल फैक्ट है। जाहिर होना छींकेगा, ना खांसेगा, ना उसे कोई स्किन पे वायरस होगा, लेकिन उसके बाद उसे बिल्कुल एक अछूत की तरह बहुत ही खुफिया तरीके से उसकी तदफीन होती है। इससे मरने वालों के अजीजों पे इंतहाई अंदोहनाक सूरत हाल पेश आती है। हमने बीमा ने कम से कम 3 दफा वज़ीर आज़म जिनको उनके जो उनके मेन वज़ीर हैं मुर्तज़ा साहब, उनको इसके SOPs में अप्रोप्रिएट चेंजेस, हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि गुस्ल तक आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ उसको ट्रेन लोगों के साथ गुस्ल दें, उसके बाद तदफीन तक उसको जिसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे तदफीन होती है वैसे करने दें, उनके आइजा करें, नॉर्मल कब्रिस्तानों में करें। ये सारे हमने बता चुके हैं। अगर किसी को टेक्निकल बुनियादों में इख्तिलाफ है तो करें, लेकिन मैं आपको अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि 1.5 महीना हो गया है उनको रिमाइंड कराते कराते। बल्कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से भी हमारी एक वाहिद मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने उनको खुद अपने हाथ से ये रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जनरली स्पीकिंग दे डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम। होता ये है उसके बाद कि फिर जब इंतकाल होता है और लोग डिक्लेयर नहीं करना चाहते और फिर ये कहते हैं कि इसको कोरोना लिख दिया, तो वो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। अगर आप उसके SOPs को साइंटिफिक बुनियादों पर आसान कर दें, साइंटिफिक बुनियादों पर, तो लोगों को परेशानी खत्म हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि जो ये सिस्टम एक और भी चीजें जारी हैं कि जो अस्पताल जो लोगों को ये जो डेड बॉडीज के अलावा जो पुलिस के लोग जो खामखा लोगों को परेशान कर रहे हैं, खुदारा इस मौके पे उनको भी परेशान ना किया जाए अननेसेसरीली। जी आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी होने जा रही है, हम सबको पता है, तो स्टेटिकल व्यू देखकर हमें बताएं कि पहले जो रिपोर्ट हो रहा है पेशेंट, अब आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन होगा जिसके बाद कितनी % पेशेंट बढ़ेंगे?
देखिए एग्जैक्ट तो मेरे ख्याल में इसी में ऐड करना है जी जी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब हुकूमत कोई फैसला करती है उसके बाद आप आगे बैठ जाते हैं। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से अरबों रुपए का राशि तकसीम कर दिया गया जो रिकॉर्ड पे नहीं है, इसी तरीके से मेडिकल के हवाले से वो कहते हैं कि डॉक्टरों को सहूलियत फराम की जा रही है, लेकिन उसके भी अगेंस्ट कोई नहीं आता। सिर्फ जब लॉकडाउन की बात आती है तो लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, अस्पतालों में क्या सुविधा है ये भी आपको बिल्कुल पता है, तो क्यों नहीं हुकूमत से अमली काम की लिए डॉक्टर बाहर निकलते हैं, अस्पतालों में तो है, जैसे आप अपने दीगर चीज़ों के लिए भी मुतालबात रखते हैं और स्ट्राइक्स करते हैं, तो क्यों इस पर ये जो अहम मसला है लॉकडाउन खत्म करने का, इस पर आप चाहते हैं कि हम स्ट्राइक करें? डॉक्टर साहब आप खुद कह रहे हैं ना तशवीशनाक सूरत। हाँ तशवीशनाक सूरत, लेकिन देखिए मैं बता दूं, तो सुनिए नहीं तो हुकूमत पे देखिए हमारा काम है बताना। हम तमाम डॉक्टर और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डे 1 से, जैसे मैंने कहा कि 22 जनवरी से हम हर चीज से बात कर रहे हैं। और देखिए ये सब राशन डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे कर रहे हैं, क्यों, किसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने पैसे का मिल रहा है, क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉट आवर बिजनेस, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम जो तशवीश है एज ए डॉक्टर, देखिए मैं नाक कान गले का डॉक्टर है, ये पल्मोलॉजिस्ट हैं, आप आएंगे खुदा ना खास्ता तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है जी, इसकी बायोप्सी करनी है। अब अगर आप नहीं करते तो डॉक्टर कोई जाके आपको घर से जबरदस्ती नहीं लाएगा। सेम हेयर कि हम एक चीज तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसको आप देखें। दूसरी बात है कि जो आपने बात की है ना, जो हम ये कह रहे हैं कि जब केसेस हमारे पास 5, 6, 7 इस तरह से केसेस आ रहे थे, आप स्टैटिस्टिक्स बात कर रहे हैं ना, तो हमने उस वक्त लॉकडाउन की बात की थी और बड़ा अच्छा कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बढ़ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन नहीं था, वो मजाक था। अब जब केसेस सिर्फ सिंध के अंदर, अभी मैं सुन के आ रहा हूं कि मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि 1771 केसेस सिर्फ सिंध में रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप समझ लें कम से कम ये 2,500 3,000 के करीब केस होंगे पाकिस्तान में आज। अगर ये केसेस हैं तो हम तो यही बात कर रहे हैं ना कि ये आप इसको रोकें। अब इसको आप लॉकडाउन से रोकते हैं, आप एसओपीज बना के रोकते हैं, या फिर अगर नहीं रोक पाते तो आप हॉस्पिटल को बिल्डअप करें, आप ह्यूमन रिसोर्सेज लाएं, डॉक्टर्स लाएं, ट्रेन डॉक्टर्स लाएं। हर आदमी का काम नहीं है, हर आदमी जाके नहीं काम कर, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी का भी काम नहीं है, ना मिनिस्टर्स का है ना किसी का। इसी तरह से जो ट्रेन डॉक्टर भी नहीं है तो वो भी नहीं कर सकता, तो हमें ट्रेन डॉक्टर चाहिए, जो कि बहुत प्रॉब्लम है। एक्सपो सेंटर में हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमें ट्रेन डॉक्टर्स नहीं मिल रहा है। हमें बहुत सारे लोग और कहते हैं कि डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। फीमेल डॉक्टर्स हैं, ये भी एक अलग इश्यू है कि मेल डॉक्टर्स बहुत कम है हमारे पास, एडमिशन कम होता है, तो फीमेल डॉक्टर्स ज्यादा हैं और वो जाहिर है रात को ड्यूटी नहीं करते। तो ये इश्यूज है हमारा, और हम बारहा हुकूमत से यही बात करते रहते हैं कि खुदारा एक मैनेजमेंट बनाए। मैनेजमेंट क्या बनाए, आपके पास आपने टाइम जाया कर दिया है, आपके पास टाइम था लॉकडाउन करने का उस वक्त, और उसको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में करना चाहिए। जब हम बार बार कह रहे थे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी लाएं, अभी भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। अभी सिंध गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, केपीके कुछ और कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, जिसकी वजह से लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। तो आप एक वायरस से तो निपट रहे थे और सही तरह से नहीं निपटे, अब दूसरा वायरस भी आपके पास आ गया जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, वो है भूख का वायरस, अफलास का वायरस। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने कहा सारी जिम्मेदारी, आपने लॉकडाउन छोड़ दी और सारा भूख के अफलास को दूर करने के लिए आपने कोरोना के वायरस को पीछे छोड़ा, और आपने कहा कि ठीक है लोग बाहर निकले, और उसकी आपने कोई तैयारी नहीं की, और उसको सारा जिम्मेदार आपने आवाम को ठहरा दिया, विच इज वेरी बैड। इरफान ये बताइएगा कि बहुत सारे जो पेशेंट रहते हैं जिनमें सिम्टम्स नजर नहीं आते, लेकिन उनके टेस्ट से करवाए जाते हैं, वो मुश्किल सकते हैं, तो ऐसे पेशेंटों का क्या होगा, वो कहा जाए? आप देंगे जवाब, देंगे आप देंगे, काजी आप देंगे? ये बिल्कुल सही कहा कि ये वो पेशेंट हैं जिनके लिए हम कह रहे हैं कि आप मास्क पहने, ये कैरियर्स हैं, ये आपको बीमारी दे सकते हैं, वो बीमार लोग हैं, लेकिन क्योंकि ये वायरस जब अटैक करता है आपको, जिसको अच्छा मैं अभी तो वो तकरीबन 15 रोज का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, 8 से 15 रोज। 15 रोज के बाद उसकी बीमारी ज़्यादा होती है, पहले 15 रोज तो उसको कुछ एक नॉर्मल पर्सन होगा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप मास्क पहनें, क्योंकि मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो वो जो कैरियर है जिसको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो कोरोना का मरीज है, वो आपको बीमारी दे सकता है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काजी साहब? हाँ जी, हाँ यासिर एक मिनट वो यासिर बोल रहे, चले खातून को आपको इजाजत मिल गई है।
बिल्कुल हम यही तो बात कर रहे हैं कि हमारे आवाम जो है वो अवेयर नहीं है। लोग बहुत सारे मिथ्स हैं कि कोरोना वायरस है ही कोई चीज़ नहीं, ये तो बेकार है, ड्रामा है, कोई कॉन्स्पिरेसी है और कोई प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हुकूमत आवाम को हम सब ये मैसेज देते हैं कि कोरोना वायरस एक हकीकत है, इसमें लोग इंतकाल कर रहे हैं, तो अपनी हिफाजत करें जो बताया जा रहा है। जी आप यासिर डॉक्टर ठीक है, इसमें जो स्कूल के प्रेसिडेंट डॉक्टर आपके पीछे ठीक है, और जो बोर्ड बनाई गई है टास्क फोर्स उसमें भी डॉक्टर मौजूद है। पीटीआई क्षेत्र के लोग हैं वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म से भी कहते हैं डॉक्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि और की सिचुएशन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी अभी मानते चाहिए और कोई वादे पॉलिसी नहीं है। ऐसा आप नहीं समझते कि प्राइवेट खान ने जो है वो मरने का लाइसेंस दे दिया कि भाई लॉकडाउन खोलो और अब धड़ाधड़ मरने का लाइसेंस होगी या पाकिस्तान होगी, तो ये सिचुएशन कहाँ जाके बैठेगी? इस मुल्क की पॉलिसी भी नहीं कि सदर डॉक्टर के लिए हम नहीं जाएंगे, ये वक्त नहीं, हम आपसे एग्री करते हैं। बहरहाल हमारे वजीर आजम हैं, हमारे सदर हैं, हम दे आर बोथ वेरी रिस्पेक्टेबल, लेकिन हाँ हम यही बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम को तो फेस करना पड़ेगा और हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और आवाम की जिम्मेदारी है कि कैसे काजी तुम उठा लो ना। आप करें सर, हम इसका काजी साहब करें, बताएं। देखिए बहुत अच्छा आपका ये सवाल है और अफसोस की बात तो यही है कि ये सारे डॉक्टर्स होते हुए और फिर इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी टीमें बैठी थी। देखें एडवाइजर्स कौन हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, इसमें पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस के लोग हैं, इनमें एनेस्थेटिस्ट हैं, इनके पास पैथोलॉजिस्ट हैं, यानी इस डिजीज के बारे में मुकम्मल आगाही भी है, इसका ट्रांसमिशन का तरीका भी पता है और इसके थ्रेट भी पता है। तो ऐसे डॉक्टर्स कम्युनिटी हमारी हम जो बात करते हैं वो हमारा काम है कि हम एक आगाही न सिर्फ आवाम को दें बल्कि हम हुक्मरानों को भी ये बातें करें कि इससे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। हमारा काम है खतरे से आगाह करना, हमारा काम है कि ये तशवीश बता देना कि आपके इन फैसलों से क्या हो सकता है। फैसला करना हुकूमत का काम है। हुकूमत अपनी रेट अगर कायम नहीं कर सकती और उसके ऊपर ऐसी धमकियां ताजरों की तरफ से आ जाती हैं कि आप करो फैसला या ना करो, हम फला तारीख को शहर रद्द कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है और गवर्नमेंट की कंफ्यूजन जो है उसकी वजह से जो अवाम है वो मसाइल का शिकार हो गए और खतरा बहुत है और ऐसा ना हो कि हम जो है किसी बड़े डिजास्टर में चले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। शटर डाउन करने का नहीं बोलते, मैंने